So today's topic is minus, Cartesian product, and join in MySQL. Minus combines the result of two select statements. It is used to display the rows which are present in the first query but absent in the second query. It has no duplicates and data is arranged in ascending order by default. Select asterisk from student 10th A, and here we have used the keyword minus. Select asterisk from student 10th B. So what we have done, we have combined two select statements using minus operator. But minus does not get executed in MySQL, so we have an error in SQL syntax. But theoretically, you must understand what minus is. Now see the minus concept. We have two tables, T1 having the values 1, 2, and 3, and T2 having the values 2, 3, and 4. So what T1 minus T2 will display. So let us compare these two values. 1 is not there in T2, 2 is there, it should get minus. Similarly, 3 will be eradicated or subtracted from T1. So if you see this figure, we have this shaded portion, blue part. So according to this, T1 minus T2, we get 1 as output. तो T1 माइनस T2 का मतलब है कि T2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो T1 में है तो उनको हटाना है, हटा करके जो बचा that will be your output. See, one more example is there. In this image, you will see comparison of union, minus and intersect. तो तीनों क्लियर हो जाएंगे और यूनियन और इंटरसेक्ट ऑलरेडी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. Now let us see, we have a relation R1, relation और table एक ही बात है. We have a relation R1 and we have three fields or three columns as F1, F2 and F3. Relation table F1 के अंदर A दोनों में है, F2 में B और C, F3 में C और D. ठीक है. Now see relation second. Here we have only one row with the values A, C and D. Now let us do union operation first. तो R1 union R2, इससे क्या होगा, दोनों टेबल की जो रोज हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे. तो सी वी हैव A, B and C, A, C and D, and this A, C and D are in both the tables. और जब हम R1 यूनियन R2 करते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती. यूनियन ऑल अगर हम करते R1 यूनियन ऑल R2 तब ये दोनों वैल्यूज आ जाती. ठीक है. Now let us see R1 intersect R2. So R1 intersect R2 will display common rows और common कौन सी है इसमें, A, C and D. So we have the output A, C and D. Now let us come to today's topic R1 minus R2. अब इसका मतलब R2 में जो रोज हैं अगर वो R1 में है तो वो हट जाएंगी. R2 के अंदर है A, C और D, R1 में भी है A, C और D. So this will be removed and you will get output as C at the bottom, A, B and now in this same situation if we do R2 minus R1, it will yield null values. Why? R2 minus R1 से कुछ भी नहीं आएगा. क्यों? R2 minus R1 का मतलब हुआ कि R2 में से R1 की वैल्यूज हटानी है.
ऐसी कोई वैल्यूज ही नहीं है। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट, actually this word Cartesian is related to a scientist named as Descartes. One introduction about this: he was a creative mathematician, scientific thinker and metaphysician. तो इसी के नाम से रिलेटेड एक वर्ड कार्टेशियन यूज किया जाता है, लाइक इन मैथमेटिक्स वी यूज कार्टेशियन प्लेन, here we use Cartesian product. Let us move to Cartesian product. इसको बहुत ध्यान से समझना है, फिर MySQL में भी आप आसानी से समझ पाएंगे। बहुत इजी है, पर एक बार ध्यान से समझ लो। What Cartesian product means? See this table. We have two set of values A and B. A के अंदर x, y और z लिखा हुआ है और B के अंदर 1, 2, 3 लिखा है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A मल्टीप्लाइड बाई B क्या होगा? ऐसा मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी के अंदर सिखाया जाता है, बट द कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू MySQL ओनली, इसलिए ये एग्जांपल लिया है। यहाँ देखिए इनके कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे, x 1, ठीक है, यहाँ से x लिया और यहाँ से 1, here y 1 and with this z 1। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में वैल्यूज का कॉम्बिनेशन डिस्प्ले होता है। सिमिलरली फॉर x when combined with second column's value 2 we have x2 और फिर यहाँ पे y2 और यहाँ z2। और दोबारा से देखते हैं x3 y3 z3, ठीक है। अगर 3 यहाँ पे नहीं होता तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये वैल्यूज नहीं आती, ठीक है। एक बार जल्दी से देखेंगे, जल्दी से देखने पे क्लियर हो जाता है, ज्यादा आसानी से रहती है। सी हियर x1 y1 z1, यानी कि a की तीनों वैल्यूज दूसरी टेबल के पहली वैल्यू से कंबाइन हो गई। सिमिलरली x2 then y2 then z2 and x3 y3 z3। तो ये जो आपका आउटपुट आया इसको a इंटू बी से डिनोट किया जाता है एंड दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। नाउ हाउ वी कैन चेक कार्टेशियन प्रोडक्ट इन MySQL, यहाँ एक एग्जांपल है। फर्स्ट सी ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी had already created two tables, student 10th A, student 10th B। वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पर। यहाँ देखिए सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट 10th A, बहुत ध्यान से देखना है। मैं सिर्फ नेम पर फोकस करूंगा, रोल नंबर नेम मार्क्स की जगह सिर्फ नेम से ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। वी हैव अमन, आकाश एंड फरदीप। इन स्टूडेंट 10th B वी हैव दिनेश, दिवाकर एंड फरदीप, ठीक है। अब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले करना है तो हम कैसे लिखेंगे? सी ऑन राइट हैंड साइड select asterisk from student 10th A comma student 10th B। तो 10th A comma 10th B दोनों के जो टेबल के नाम हैं वो कॉमा करके सेपरेट करके लिखा जाता है, बस इतना ही करना है। तो ये क्या करेगा, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा। सो हाउ योर डेटा विल बी डिस्प्लेड, लेट अस सी ऑन राइट हैंड साइड। एक बार इस फिगर को ध्यान से देखो फिर से, एक्स वाई जेड और यहाँ है 1 2 3, दो टेबल्स। तो वी हैव कॉम्बिनेशंस x1 y1 z1 लाइक दिस, यानी दूसरी टेबल का जो पहला डेटा है उसके साथ तीनों का कॉम्बिनेशन। नाउ लेट अस कम बैक, इधर आ जाते हैं। तो अमन, आकाश, फरदीन हमारे एक्स वाई जेड हो गए, ठीक है।
और दिनेश हमारा हो गया 1। आई थिंक इट इज क्लियर। यहाँ देखिए आउटपुट, अमन विद दिनेश, आकाश विद दिनेश एंड फरदीन विद दिनेश। ठीक है, x1 y1 और z1। ठीक है ना। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया, अमन आकाश फरदीन दिनेश के साथ कंबाइन हो गए। सिमिलरली दिस अमन आकाश फरदीन विल गेट कंबाइंड विद दिवाकर। सो वी हैव अमन दिवाकर, आकाश दिवाकर, फरदीन दिवाकर। बाकी सारी वैल्यूज भी सिमिलरली ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएंगी, पर हम सिर्फ नाम से डिस्कस कर रहे हैं, समझना आसान हो जाएगा। एंड अमन फरदीन, आकाश फरदीन एंड फरदीन फरदीन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। बस कॉम्बिनेशन था, प्रोडक्ट क्या है आपको समझ में आ गया होगा। दो टेबल्स का डेटा कॉम्बिनेशन में कैसे हम डिस्प्ले कर सकते। लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ज्वाइन एक क्लॉज है, जैसे ऑर्डर बाय क्लॉज होता है, ग्रुप बाय क्लॉज भी होता है, ज्वाइन भी एक क्लॉज है MySQL। So let us see this. So join clause is used to combine records from two or more tables in a database. So all these terms, Cartesian product, join and minus, intersect, union, all these are interrelated, तभी इसको अलग से एक टॉपिक में रखा गया है। So join clause is used to combine records from two or more tables in a database. तो एक दो से ज्यादा टेबल भी हम यूज कर सकते हैं, बट दैट बिकम्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। तो हम अभी फॉर कंबाइनिंग कॉलम्स फ्रॉम टू टेबल्स बाय यूजिंग कॉमन वैल्यूज। I will give you one example just after this. We have three types of joins: Cartesian join, equi-join, natural join in our syllabus. Otherwise, there are so many types of joins. We will discuss that. Join के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। Now let us consider we have two tables. Table 1, customer table. Check the names of columns in customers table. Here we have ID, then name, age, address, salary. Table 2, orders table. Here we have OID, date, customer ID, amount. तो जैसे कस्टमर ID 3 है, इसका मतलब ID 3 कौशिक, कौशिक ने ऑर्डर्स टेबल में कुछ ऑर्डर किया होगा और ये उसकी डिटेल्स है। तो ऐसे इन दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। इफ कस्टमर्स आर देयर, दे विल डेफिनेटली प्लेस ऑर्डर्स। तो दो टेबल्स बनाएंगे हम, कस्टमर्स टेबल एंड ऑर्डर्स टेबल। ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। नाउ सी द क्वेरी एट द बॉटम। लेट अस जॉइन these two tables in our select statement as shown below. Select ID, name, age, amount from customers, comma orders. अब कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर्स जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अभी अभी हमने पीछे देखा था, स्टूडेंट 10th A कॉमा स्टूडेंट 10th B। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से भी हमें अगर कुछ फिल्टर आउट करना है, उसके लिए हम वेयर क्लॉज में कंडीशन दे सकते हैं, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। अभी आई थिंक डॉट ऑपरेटर आप पहली बार देख रहे हो, पहली बार यूज कर रहे हो, इसका मतलब बता देता हूँ। कस्टमर्स डॉट आईडी का मतलब है कस्टमर्स नाम की टेबल में आईडी कॉलम, इट मींस दिस customers ID, just a second, is representing this column. Orders dot customer ID, it is representing this column. अब इक्वल टू लगाने से क्या होगा, इट मीन्स दोनों टेबल का डेटा मैच होना चाहिए।
और किस कॉलम का डेटा? आईडी का। ऑर्डर के कस्टमर आईडी से मैच हो रही है तो ये क्वेरी आपको कुछ आउटपुट दिखाएगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं हुआ, कोई आउटपुट नहीं है। लेट अस चेक इधर क्या क्या है। 3, 3, 2 एंड 4। ठीक है, ये जो 3 है कस्टमर आईडी, ये किससे मैच करेगी? कौशिक से, और 2 बार मैच करेगी। उसके बाद सेकंड खिलान एंड 4 चैताली। नाउ चेक योर आउटपुट, दिस इज योर आउटपुट। इस क्वेरी का ये आउटपुट आया, कौशिक, कौशिक, खिलान एंड चैताली। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन है। और क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है वो तो सिलेक्ट से पता लगेगा। सिलेक्ट में हमने इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आईडी, नेम, एज और अमाउंट लिया है। तो आईडी, नेम, एज और अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे आईडी लिखा है तो आईडी कस्टमर्स टेबल के अंदर है। नेम दोनों में से सिर्फ पहली टेबल में। सपोज अगर नेम इस टेबल में भी होता कहीं, ऑर्डर्स टेबल के अंदर, तो प्रॉब्लम आती कि ये जो नेम है ये ऑर्डर्स टेबल का है या कस्टमर्स टेबल का। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में टेबल का नाम भी लिखना पड़ता है। मैं लिख के दिखा रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। तो सिर्फ नेम की जगह हमें टेबल का नाम भी लिखना पड़ता। तो वी शुड हैव रिटन ऑर्डर्स डॉट नेम इन दैट केस। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ जॉइन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइन दोनों यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर कस्टमर्स डॉट ये कॉमा ऑर्डर्स के बाद सेमीकोलन अगर हम लगा देते तो सबके कॉम्बिनेशन आ जाते। तो कॉम्बिनेशन का मतलब कितनी रोज आती हैं? हाउ मेनी रोज आर देयर? 7 एंड हाउ मेनी रोज आर देयर? 4। 7 4 आर 28। तो 28 रोज आपके आउटपुट में आ जाती। पर यहाँ पे हमने वेयर के साथ एक ज्वाइनिंग कर दी, एक कंडीशन लगा दी, दिस इज कॉल्ड ज्वाइन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और ज्वाइन बोथ आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, so tomorrow we will go into detail of join clause. So now let us see there are different types of join. एक join यहाँ पे आपके सामने है, कार्टेशियन join। एग्जांपल आप समझ ही गए हैं। The Cartesian join is also a keyword. Cartesian join और क्रॉस ज्वाइन दोनों का काम एक ही है। इट रिटर्न्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। लास्ट 2 एग्जांपल्स में आप समझ ही गए हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और ज्वाइन कंडीशन कैसे लगाते हैं। एक और एग्जांपल है क्रॉस ज्वाइन को जिसमें यूज किया गया है। सी दीज 2 एग्जांपल्स। पहला, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट 10th ए, क्रॉस ज्वाइन स्टूडेंट 10th। देखिए आउटपुट वही सेम है, अमन, आकाश, फरदीन combined with first row that is Dinesh. Again Aman, Akash, Fardeen combined with Divakar. Aman, Akash, Fardeen combined with Fardeen. तो कार्टेशियन ज्वाइन ये भी एक क्लॉज है। तो वी राइट इट लाइक दिस, क्रॉस ज्वाइन। और यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में येलो बॉक्स में यहाँ पे कार्टेशियन ज्वाइन लिखा हुआ है, दोनों का आउटपुट सेम। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए अब आपके पास 3 तरीके हो गए। पहला जो आपने पीछे स्लाइड में देखा, कैसे लिखते हैं? कॉमा लगाकर। ध्यान से सुनो, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट 10th ए, कॉमा स्टूडेंट 10th, इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। या फिर आप लिखोगे सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट 10th ए क्रॉस ज्वाइन स्टूडेंट 10th बी, इससे भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। या फिर आप क्रॉस ज्वाइन की जगह लिखेंगे कार्टेशियन ज्वाइन, इससे भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा।
ठीक है. So with this we have finished today's topic. Okay, thank you.